Belated happy Diwali to all of you. May this Diwali bring more and more prosperity to all of you. As usual, last time also I told you, our own institute जो एक स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड वेरी सून इन द मंथ ऑफ दिसंबर. अब रियलिटी बनने वाला है M&R IAS अकेडमी. तो आज का शुरू करते हैं. सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू आस्क, कोई भी पेशा आप करते हैं, कोई भी व्यवसाय आप करते हैं, तो इसकी आज़ादी आपको कहाँ से मिलती है? विच आर्टिकल allows you to have freedom of profession, occupation, trade or business. Welcome to lecture 18 of Vaad Pratibad and Samvad series. I am Deepak Prakash. If you remember correctly, in lecture 17 I covered extensively article 19 clause 1 sub clause D and E, Khadak Singh versus the state of UP, Kaushalya versus the state of UP, various dimensions of freedom of movement, inner line permit and many more. As promised, I have posted 4 questions in my Telegram channel also, but unfortunately very few of you have attempted it. I would still request you to attempt those questions so that you can make your preparation very comprehensive. Coming to today's lecture, today I am going to cover Article 19 Clause 1 Sub Clause G, restrictions under Article 19 Clause 1 Sub Clause G, Article 19 Clause 1 Sub Clause G and environmental concerns. उसका एसोसिएशन कैसे, क्योंकि UPSC in 2022 already in mains question they have asked this directly. So how Article 19 Clause 1 Sub Clause G is associated with environmental concerns? Doctrine of res extra commercium, खोदे डिस्टिलरी केस है, उसके बारे में देखेंगे. Then judicial interpretation of rights provided under Article 19 Clause 1 Sub Clause G. I'm sorry, I'm having cold actually. All India Jamiatullah Khuraish versus the state of Maharashtra 2016 case. हानिफ खुरैसी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 का ही केस है. एंड देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट आर्टिकल 301. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल 19 क्लाउज 1G कहता क्या है. सो इट कन्फर्स ऑन एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री राइट टू एवोकेशन और द राइट टू चूज एनी प्रोफेशन, बिजनेस, ऑक्यूपेशन और ट्रेड. यू कैन चूज एनी ऑफ देम. But a state has been given power, a state is free to prescribe certain technical qualifications or necessary qualifications including educational qualifications or other technical qualifications. A state can impose some reasonable restrictions in the interest of general public. The right that has been provided to you under Article 19 Clause 1 Sub Clause G is not absolute. Right वहाँ absolute नहीं मिला है. There are certain restrictions in the interest of general public. A state can prescribe certain restrictions, but those restrictions should be reasonable and fair. अभी आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कोई भी जब ऐसे तो डॉक्टर बन नहीं सकता है. देयर अ स्टेट हैज प्रिस्क्राइब्ड द नेसेसरी क्वालिफिकेशन हु कैन प्रैक्टिस मेडिसिन इन दिस कंट्री. मिनिमम डिग्री इज MBBS. आप MBBS करोगे तभी आप मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हो. यू कैन नॉट गो टू कोर्ट कि मुझे मेडिसिन प्रैक्टिस करने का मन है विदाउट नेसेसरी क्वालिफिकेशन. MBBS की डिग्री नहीं है बट आई वांट टू प्रैक्टिस मेडिसिन बिकॉज आई हैव गॉटन दैट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज G. तो वो आपके पास आज़ादी नहीं है. सो अ state can place certain restrictions upon you in the interest of general public. A state can take over a business or trade such as money lending, lottery, liquor, betting, either partially or completely to the exclusion of citizen. आपको बिल्कुल भी उस बिजनेस से एक्सक्लूड भी किया जा सकता है एंड यू कैन नॉट क्लेम फंडामेंटल राइट्स. तो
तो ये है बेसिक अबाउट आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी. नाउ कमिंग टू राइट्स अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी. कमिंग टू बेसिक्स, is it available only to citizen? And the answer is yes. Rights provided under article 19 clause 1 sub clause G is only available to citizens, but here the term citizen has been very comprehensively defined. Citizen include a company that has been incorporated under the Companies Act, a religious sect like say Vaishnavism, Saivism, these all are religious sect, और अ ज्यूरिस्टिक पर्सन. सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मामले में अगर आपको जजमेंट याद होगा, सो सुप्रीम कोर्ट देन सेड राम लला इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन. सो they are also citizen, so the term citizen has been very comprehensively defined under 19 clause 1 sub clause G. Now if your right to practice profession, if you feel that it is getting violated, so in that case this right is only available against the state and not an individual. You cannot go against any individual in that case. So available against any state or a state body but not against any individual. अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा, मैंने बोला था आर्टिकल 19 क्लाउज 1 D and E is available, enforceable against both a state and individual. If your freedom of movement is being prohibited by some other individual, you can go directly to approach Supreme Court, but in this case no, it is only enforceable against a state, not against an individual. ये बेसिक चीज है, इसको ध्यान में रखना है. कमिंग टू रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 G. तो पहला रेस्ट्रिक्शंस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक द टर्म हैज बीन kept open ended. Government can define it the way they want it. So in the interest of general public there is a restriction. Then it prescribes any, as I told previously, it prescribe any technical or educational qualification for certain profession. For example, a medical practitioner. Same is for LLB, an advocate. जब तक आप LLB की डिग्री नहीं लोगे and then you will pass bar council examination, you cannot practice. तो वो एक बेसिक मिनिमम है. एंड देन थर्ड इज अ स्टेट मोनोपोली. अभी अ स्टेट मोनोपोली वाज नॉट एक्चुअल रेस्ट्रिक्शन, इट वाज एडेड थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट व्हेन आर्टिकल 19 क्लाउज 6 sub clause 2 was added by the first constitutional amendment act, which enabled the state to make laws for creating a state monopolies either partially or completely in respect of any trade or business or industry or service by excluding the private citizen wholly or in part. प्राइवेट सिटीजन को बिल्कुल भी एक्सक्लूड किया जा सकता है. अ स्टेट कैन क्रिएट इट्स ओन मोनोपोली. It was added through first constitutional amendment act. It was not an original restriction, but it was added through first constitutional amendment act. Now, अभी मैंने बोला कि यूपीएससी ऑलरेडी इन 2022 एक मेंस का क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हाउ सुप्रीम कोर्ट have made environmental concerns. How Supreme Court judgment have made environmental concerns as a part of the constitution itself, constitutionalism. तो अभी समझते हैं कि आर्टिकल 19 क्लाउज 1 G एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न. सो इन्वायरमेंटल कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड environmental concern can be one of the factor on which your freedom of profession guaranteed under article 19 clause 1 sub clause G can be restricted. उसको restrict किया जा सकता है environmental concerns के लिए. Like in the MC Mehta case versus Kamalnath, Supreme Court held that any interruption of the basic environmental elements such as air or water or soil
so which are necessary for life would be hazardous to life and such regulations will be protected under Article 19 Clause 1 Sub Clause G. कोई इंडस्ट्री आप चला रहे हो विच इज काउजिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न, विच इज डिग्रेडिंग इकोसिस्टम, देन गवर्नमेंट इज विद इन इट्स पावर टू रेगुलेट इट और इवन फुल्ली शट इट. आप ये नहीं कर सकते कि मेरे पास आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, सो स्टेट क्यों इंक्रोच कर रहा है. आप एक इंडस्ट्री चला रहे हो विच इज पॉल्यूटिंग नियर बाई सॉइल, नियर बाई वाटर बॉडीज, नियर बाई एयर. अभी तो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो इस केस में ग्रैप जैसे जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है और वो लगाया जाता है. तो मेनी टाइम्स आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इम्पोज्ड कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग एक्टिविटीज. ट्रक्स कैन नॉट इंटर इनटू एनसीआर और दिल्ली. तो ट्रक वाला जो ओनर है दे कैन नॉट से दैट दे एंजॉय फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. उनका ट्रक को क्यों रोका जा रहा है? बिकॉज वाइडर पब्लिक गुड इज बीइंग अचीव्ड बाय प्लेसिंग सर्टेन सच रेस्ट्रिक्शंस. वैसे रेस्ट्रिक्शंस लगा के वाइडर पब्लिक गुड्स आर बीइंग अचीव्ड. एनसीआर का जो पोल्यूशन वाला जो एयर है उसको प्यूरिफाई किया जाता है, स्लोली टाइम दिया जाता है कि जो PM 2.5 और PM 10 हो उसका और भी वहाँ इमिशन ना हो, ताकि जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो. सो उसी तरीके से सेम अप्लाइज टू द अदर इंडस्ट्री ऑल्सो. चमड़ा का फैक्ट्री है एंड दे आर प्लेसिंग देयर, जो भी पानी वहाँ गंदा पानी है वो गंगा नदी में गिरा रहे हैं. सो गवर्नमेंट कैन place restrictions over it, they can even give so cause notice, even close them. बैन भी किया जा सकता है. Now doctrine of res extra commercium, though it is not that much significant for UPSC, लेकिन अब UPSC का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हाई लेवल का आने लगा है. That's why I decided to include it in my notes. कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम आखिर है क्या. बाय द वे ये कॉन्सेप्ट कभी आया, सो यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड द नॉर्मल मीनिंग ऑफ इट. आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम. आई एम सॉरी, आई एम नॉट हैविंग, आई एम हैविंग कोल्ड राइट नाउ. सो द कोर्ट इन खोदे डिस्टिलरीज वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, वहां इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम. सो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट, दो चीजों को यहां पे याद रखना है. दो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम में दो चीजों को याद रखना है. फर्स्ट थिंग, दिस कॉन्सेप्ट अलाउज द स्टेट टू कीप द स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी स्टैटिक, infringe the civil rights of the citizen and without having to satisfy the taste of reasonableness at all. Generally क्या होता है, restrictions should be reasonable, but इस केस में खोदे डिस्टिलरीज में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस डॉक्ट्रिन के थ्रू many a times government can infringe the civil rights of the citizen. और उस केस में रीजनेबलनेस को सेटिस्फाई करना कोई जरूरी नहीं है. सो इट अलाउड द स्टेट टू गवर्न प्राइवेट राइट्स ऑफ सिटीजन इन पब्लिक इंटरेस्ट. इंटॉक्सिकेटिंग लीकर जैसा है. सो फॉलोइंग दिस द कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ सिटीजन हैज नो फंडामेंटल राइट टू ट्रेड और बिजनेस इन इंटॉक्सिकेटिंग लीकर. इंटॉक्सिकेटिंग लीकर के का फंड आपका राइट नहीं है टू ट्रेड और बिजनेस करने का, एंड दैट ट्रेड और बिजनेस इन सच लिकर कैन बी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. सो यहां पर अल्टीमेट एम क्या है? टू अचीव पब्लिक इंटरेस्ट. ज्यादा लोगों का जान बचाना इज मोर इंपॉर्टेंट. सो द प्राइवेट राइट ऑफ अ सिटीजन इज कर्व्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट. सो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम. Now coming to judicial interpretation of rights provided under Article 19 Clause 1 Sub Clause G. इसमें जो कुछ चीजें हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास एक मामला आया, कैन ऑफिस ऑफ MLA और MP कैन बी रिगार्डेड एज अ
प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है AR मोहन राज वर्सेस तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली। सुप्रीम कोर्ट सेड नो। ऑफिस ऑफ MLA कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन ऑक्यूपेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी। देन काउ स्लाउटर बैन एज अ रेस्ट्रिक्शन। अगर काउ स्लाउटर जो है उसके ऊपर बैन लगाना, इज इट अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। और इसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट है इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्जापुर मोती खुरैसी कसाब केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया उस रेस्ट्रिक्शन को, बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट सेड अ टोटल प्रोहिबिशन मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई टू थिंग्स। दो चीजों को, उस रेस्ट्रिक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट ऑफ गुजरात ने जो वहां प्रोहिबिशन किया था काउ स्लॉटर पे, उसको जस्टिफाई किया, बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट सेड टू थिंग। फर्स्ट, दैट अ लेसर अल्टरनेटिव वुड बी इनएडिक्वेट, एंड सेकेंड, इज इट सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ऐसा ही एक मामला आया महाराष्ट्र के केस में इन ऑल इंडिया जमायतुल्ला खुरैस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2016 सुप्रीम कोर्ट में गया। वहां पिटिशनर जो हैं दे आर्ग्यू दैट बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे दैट द imposition of total ban on slaughter of cow and its progeny by the Maharashtra government was unconstitutional and void on at least 3 grounds। उन्होंने 3 grounds बोला। एक तो बोला फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी। सेकेंड, राइट टू लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21, एंड थर्ड, राइट टू चूज आवर ओन फूड अगेन आर्टिकल 21। तो हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे ने क्या जजमेंट दिया वो समझते हैं। हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे सेड कि अंडर आर्टिकल 48 अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र is within, a state of Maharashtra is having right to impose such ban. So it is, as whatever a state of Maharashtra has done, it is okay, because article 48 asks a state to take measures to protect the milch animals and their progeny, and even impose total ban on slaughter of cows and milch animals. However, कोर्ट हेल्ड दैट कि महाराष्ट्र में जो लॉ है विच इवन क्रिमिनलाइज द पोजेशन ऑफ बीफ, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। किसी को बीफ खाने का मन है, सो ही और सी कैन गेट इट इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड एंड कैन हैव इट, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड अंडर right to have their own food of their own choice is protected under article 21. So court held that Maharashtra law criminalizing the possession of beef as unconstitutional and void, as it violated rights under article 19 clause 1 sub clause G, and also right to livelihood and right to choose one's food under article 21. So possession of beef is not, cannot be criminalized. एक खाने वाला बंदा है, एक बेचने वाला बंदा है। जो बेचने वाला है he or she can get it imported from outside, बाहर से मंगवा के यहां अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकता है। स्लाउटर ऑफ काउ बीफ बैन यहां है अलाउड, बट बाहर से अगर आ रहा है तो उसका पोजेशन कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड। सेम ऐसा ही मैटर 2022 में हानिफ खुरैसी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार में कोर्ट में गया, एंड कोर्ट रिपीटेड इट्स ओल्ड जजमेंट। सेम जजमेंट उसी तरीके का यहां भी बोला गया कि अगर कोई सेलर, इफ सम सेलर इज इंपोर्टिंग बीफ फ्रॉम आउटसाइड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। पोजेशन ऑफ बीफ इज नॉट अ क्राइम, इट कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड। स्लाउटर ऑफ काउ इज अ क्राइम, बट पोजेशन ऑफ बीफ इज नॉट अ क्राइम। अब आते हैं आर्टिकल 301 के बारे में जानते हैं, क्योंकि 19 आर्टिकल 19 क्लाउज 1 जी एंड आर्टिकल 301 बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। 19 1 जी अगर इधर है तो 301 इधर है, और दोनों मिलकर हमारे राइट्स को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं। अब जैसे मैं बताता हूं
सो सबसे पहले तो ये समझना है कि आर्टिकल 300 है ये क्या. सो इट बेसिकली कन्फर्स राइट टू फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स. इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, तो वो राइट आपको देता है. दिस मीन्स देयर शैल बी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कॉमोडिटीज ऑल अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट बॉर्डर. पूरे कंट्री को ही एक बना दिया. सो बिहार का सामान झारखंड में जा सकता है, झारखंड उड़ीसा में जा सकता है, उड़ीसा बंगाल में जा सकता है, बंगाल फर्दर आसाम में जा सकता है, सिक्किम में जा सकता है, समथिंग लाइक दैट. So there is a complete free movement of goods and commodities. Article 301 is basically regarded as a complementary right to Article 19 Clause 1 Subclause G. आपको पता होगा कि it has been borrowed from Australian Constitution. So it actually facilitates a citizen to enjoy his fundamental right under Article 19 Clause 1 Subclause G by removing the obstacles that may be imposed by the state on the free movement of goods and commodities. Article 19 Clause 1 Subclause G is a fundamental right. बट उस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर 301 नहीं होता तो डिफरेंट स्टेट्स कुड हैव इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. तो क्योंकि स्टेट ऐसा ना करे तो इसीलिए 301 इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉरोलरी और एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी. बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 301 एंड 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी. सबसे पहले तो एक जो है 19 क्लॉज 1 जी जो है वो फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल अंडर आर्टिकल 301 इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, Article 19 Clause 1 Sub Clause G is available only to citizens. सिर्फ citizens के पास है. But Article 301 is available to any individual who is involved in free movement of goods and commodities. एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आप समझ ही चुके होंगे कि आर्टिकल 19 Clause 1 G, if it is being violated, you can directly go to सुप्रीम कोर्ट. आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट नॉट फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 301. उस केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे. यू विल कम थ्रू प्रॉपर लीगल चैनल. देन बट सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड दैट इफ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 301 affects the citizen's right under Article 19 Clause 1 Subclause G, then he or she is entitled to approach the Supreme Court directly to get his or her right under Article 19 Clause 1 G and 301 enforced. तो अगर 19 Clause 1 Subclause G वायलेट हो रहा है कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जो कि 301 से रिलेटेड है और उस ऑर्डर की वजह से योर राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी इज गेटिंग वायलेटेड, यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. सो आई हैव ब्राउट यू to the most recent case laws associated with the topic. In the next lecture, I'll be discussing Article 20 in detail along with relevant case laws. सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज कवर करेंगे लाइक सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. एक रिक्वेस्ट मेरा है, try to attempt all the questions. Day after tomorrow I'll be posting 5 questions in my Telegram channel connected with this topic. Please do attempt so that you can make your preparation comprehensive. अच्छे से प्रिपरेशन को तैयार रखेंगे. डायनेमिक स्टैटिक एंड डायनेमिक सेक्शन को मिक्स करके प्रिपरेशन रखना है अच्छे से. स्टैटिक अगर अच्छे से कर लेंगे तो डायनेमिक पे भी कमांड इजीली बन जाएगा, बिकॉज स्टैटिक वुड गिव यू दैट कॉन्फिडेंस. So if you don't want to miss any important upload, please do like, share and subscribe. Happy learning. Take care. Once again, happy Diwali.